वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। जून मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंज आएंगे, क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, क्या ओवरऑल एनर्जी आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, हम ये देखेंगे। ये कंप्लीट जून मंथ रीडिंग होगी। इसमें हम सब कुछ क्लियर करेंगे, आपके करियर, जॉब, पर्सनल रिलेशनशिप और रिलेशनशिप, लव लाइफ, कनेक्शन, मनी, वॉट एवर जो भी है, हम सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो मेष राशि, देखते हैं हम जून मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है ओरेकल मैसेजेस के थ्रू। मेष राशि के लिए जून मंथ 2026 क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पायस्ट, ओके। कम्युनिटी, सेकेंड कार्ड। फ्लेक्सिबल, थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। नॉट फॉर यू, ओके। मेंडिंग, और लास्ट कार्ड है हेयर एंड नाउ का, ठीक है। नंबर 5, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे मेंडिंग का कार्ड क्यों आया है। Forgiveness, making amends, healing after arguments, okay. Each time we hurt and allow the hurt to pass through us without understanding and integration, we accumulate an unwanted burden. This keeps us chained to the very things we need to heal: the pain, the memories, the echoes of resentments, and the arguments that we rehearse over and over. Now is the time for mending rifts, healing wounds, and letting go of the old hurts in order to reclaim your power. Now is the time to forgive, to release, to make peace, and to make amends to others. Set yourself free. ठीक है, ओके। नंबर 6, नॉट फॉर यू, देख लेते हैं। A clear knowing that something is being denied to you. Rejection is God's protection. There are times when it appears that no matter how deeply you desire something, no matter how hard you're working at something, the result you seek always seems to elude you. It's as if you don't really get to be in the game and you feel you are just watching from the sidelines. The appearance of this card indicate that you are not going to attain what you want right now, that indeed your dreams for that exact thing will not be fulfilled. This is a time to radically accept that not everything is available to you when you want it. Take heart, for there are benevolent forces who desire the best for you and have a much clearer idea of what is for you, for your highest good. Rejections is God protection. Something much better that will make you truly happy is on its way. Trust this. ओके, पायस्ट का कार्ड आया है, देख लेते हैं।
Perspective, objectivity, neutral observation from a distance. Most people see the world through a personal lens. They close identify with their feelings and experiences, so much so that they come to believe that these are the only reality. There are times when you need distance in order to gain perspective and understand your circumstances from a more neutral vantage point. Now is the one of those times in your life. This is a perfect moment for you to begin to do something exploring. Instead of only considering yourself, consider what you need to understand about the conditions, people, culture, and environment you are engaged with now. You will be so happy you did. Illumination is the miracle you seek and will indeed find. Community. Belongings, being seen and understood by others, like minded connection, a sense of family and friendship, knowing your place in the world. This card signals a new affiliation with a group. Humans are social creatures and we need to know we are useful to our families and communities. In a community, everyone has an important function and feels I matter. Membership in the group provides a sense of belonging, or of kingship of and of purpose that comes from working together for the greater fulfillment of all. Perhaps you are part of a spiritual community or an artistic one. Perhaps you are in a learning community where you share your love of education regardless of its form or focus. Your community brings you joy. You will be inspired by it and want to contribute to it. Your contribution may be as small as showing up or as large as becoming its leader. No matter your position in the group, your presence is needed. Flexible, number 19. Teachability, open mindedness, being adaptable without compromising what's most important. A tree roots are solidly planted in the ground, yet its branches can bend in a hurricane, whereas a rigid structure like a building would come crashing down. Consider how the tree remains supple and secure when everything around it may be in shameless. This is how you need to be now, willing to learn new things, teachable, malleable, yet firmly grounded in who you are. Common sense is important, but so is an open mind. Stay curious, stay open, stay aware. At this time, others will be more flexible with you too. ठीक है. हेयर एंड नाउ का कार्ड देख लेते हैं. Being fully present in the moment, living one day at a time. Everything happens in the now, in the present. Only this moment counts. You have what it takes to handle anything today. If you let go of the need to look into the future or reflect on the past, be present and notice what is going on right now. This very moment has the potential for you to create miracles in your life. It's easy to yearn for a love affair or friendship you may not have right now. One that is more romantic, more fun, more reliable, more passionate. रिलेशनशिप के लिए है ये, ठीक है. द गुड ओल्ड डेज आर गॉन एंड अ न्यू डे हैज़ dawned. Let your heart trust that you have everything you need right now, whether you have the relationship you desire or not. Tomorrow is beyond your reach. Yesterday cannot return. The now is all that is available to you. Stay present and aware that in this moment, as you cherish and approve of your beautiful self. You are a magnet for love. Spirit is madly in love with you right now. Did you know that? Turn the spirit to feel the joy of love in the here and now. Okay. क्लैरिफाई भी हम करेंगे. थिंकर का भी कार्ड है. सो ज़्यादातर आप एक्सट्रीम थिंकिंग मोड में रहते हुए दिख रहे हो एरीज. मैं देख रही हूँ जून मंथ में.
एक एक्सट्रीम थिंकिंग मोड दिखाई दे रही है आपके साइड से, ठीक है। लेट्स सी पायस्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है। ओवरऑल तरीके से बहुत ही लविंग एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। आपका हार्ट चक्रा फुली ओपन अप दिख रहा है। कम्युनिटी देखते हैं क्यों आया है कम्युनिटी का कार्ड। 9 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बिलोंगिंग्स, आपका प्लेस, आपकी आइडेंटिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर कर रही है, ठीक है। फ्लेक्सिबल यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, आप एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन में डील कर रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इजी गोइंग होना इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नॉट फॉर यू का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। द एम्परर, ओके। सो कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं बनी है या मेरे लिए नहीं है, तो आप उनके लिए डिसाइड कर रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो, ठीक है। मेंडिंग यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो धीरे धीरे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो सकता है, और रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, चीज़ें मेंटेन कर रहे हो। हेयर एंड नाउ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या सो प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप जो भी कर सकते हो, आप उस सारे एक्शंस को लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो ओके, ये जनरल मैसेजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो एरीज इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। सो कुछ मैसेजेस हम ऐसे भी देखेंगे, दूसरे कार्ड, दूसरे ओरेकल डेक से भी हम देखेंगे। ओके, सो देखते हैं आपके लिए इस डेक से क्या मैसेजेस है एरीज फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बदलाव दिखाई दे रहा है। शैडो, ओके। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड स्टैंड योर ग्राउंड। माय गॉड, पावर, ओ माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एरीज। आप कुछ तो मेजर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारा चेंज, इनर वर्क दिखाई दे रहा है आपके एनर्जीज में। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके एनर्जीज में। पावर आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडेडनेस, सिक्योरिटी, और जो आप चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए। नंबर 4 एनर्जी, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो लव रिलेशनशिप एरिया से आ रही है। कनेक्शन यहाँ पे दिख रही है, एक सोल कनेक्शन दिख रही है जहाँ पे आप मेजर एक चेंज एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो। नंबर 4 एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। शैडो यहाँ पे क्यों आया है। नंबर 9, 5 ऑफ कप्स, ओके। सो आप अगेन अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो एरीज। हो सकता है आपने कुछ ट्रॉमा सेट कर रखे हो अपने अंदर, कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस आपने सेट कर रखे हो, उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आप अपने फियर पर भी काम करते हुए दिख रहे हो। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, या सो आपके लिए लव बहुत स्ट्रांगली आप लव एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, और लव में आपकी जो भी डिज़ायर थी, जो भी इच्छाएं थी, वो सारी आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है। स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो ऐसा लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप कोई ना कोई एक्शन और कोई ना कोई एक सॉलिड डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन में। अगर ये रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में भी सेम ही हो सकता है, ठीक है। सो पावर यहाँ पे क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस,
आप अंदर ही अंदर फील कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ एक बिग बिग वे में चेंज हो रही है और आपकी लाइफ में आप बहुत सारी पावर और बहुत सारा चेंज एक्सपीरियंस करने वाले हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती हैं आपके लिए। जून मंथ में ये सारी एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 4 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है एरीज आपके लिए। अब हम टैरो से देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम जनरल एनर्जीज के थ्रू चेक करेंगे कि मेष राशि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है 15 to 21 मई के लिए। हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड एंड द एम्परर। ओके, पहली बात तो अंदर ही अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट है। इमोशनली थोड़े से आप अपसेट दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप की लाइफ में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांग स्टेबिलिटी दिख रही है, सिक्योरिटी दिख रही है, ठीक है। और ग्राउंडेडनेस दिख रही है, डीप डीप स्पिरिचुअल एनर्जी भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है आप किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जहाँ पे कास्ट कल्चर और रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी सोल कनेक्शन में या स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो जहाँ पर आप एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस नई शुरुआत को लेके बिल्कुल कंफर्म दिख रहे हो, बिल्कुल श्योर दिख रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। आप डिसीजन लेते हुए चल रहे हो, डिसीजन ले लिया है ऑलमोस्ट आपने, और आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस चीज़ को लेके कि आपको एक्चुअल में क्या करना है या आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ से या आपके रिश्तों से या आपकी एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, आप वो चीज़ आपके माइंड में एकदम क्लियर हो रखी है। प्लस आपके अंदर एक एक्सट्रीम पैशन दिख रहा है, डिज़ायर दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है। चीज़ों को करने की एनर्जी दिख रही है, आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो एरीज, ठीक है। स्टेबल, ग्राउंडेड, थोड़ा सा कोल्ड और स्टबर्न एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा स्मूथ और फ्लेक्सिबल होके चलने की नीड है। और हो सकता है आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो हम थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर ही लेते हैं कि ये एक्चुअल में क्यों आया है, ठीक है। हायरोफेंट क्यों आया है देख लेते हैं। डेथ, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि कोई एंडिंग आपने रिसेंट में करी है एरीज, और आप किसी तरह के कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। कोई रिसेंट में कोई एंडिंग हो सकती है, या फिर आप किसी प्रोसेस को एंड करते करते उस प्रोसेस में स्टेबल होते जा रहे हो, ठीक है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कोई रिलेशनशिप है और आप उस रिलेशनशिप में हो और वो इस रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगी, यू फील लाइक दैट, बट हो जस्ट ऑपोजिट ही रहा है, चीज़ें बहुत स्टेबल वे में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और मे बी आपने पास्ट में रिसेंट कोई एंडिंग करी है और उसके बाद आप बहुत ही सिक्योर और ग्राउंडेड प्लेस पे दिख रहे हो, बहुत ही मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और बदलाव बहुत जल्दी फास्ट मूविंग एनर्जी से दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज की एनर्जी में, द एम्परर, अगेन द एम्परर, ठीक है। सो आपने सोच लिया है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, एक नई बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। और आप पूरी तरह श्योर हो, आप पूरी तरह से कंफर्म दिखाई दे रहे हो इस नई शुरुआत को लेके। सो अगेन द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पे आपके अंदर ये जो एनर्जी है ना, वो बेसिकली लॉस और सेपरेशन इस तरह की एनर्जी के बाद है। लाइक आप किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आपको हो सकता है किसी तरह का फियर रह रहा हो लंबे समय से, या किसी तरह की बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको कोई लॉस हुआ हो, कोई सेपरेशन आई हो। फाइनली आप उस एनर्जी पर एक तरह की पकड़ बना रहे हो और आप यही सोच रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज की एनर्जी में, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
सो आप थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो, स्पेशली हो सकता है अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, या फिर अपनी इंडिपेंडेंस को लेके, अपने करियर को लेके, या फिर अपने सिंगल होने की वजह से आप एक डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में हो सकते हो एरीज। एंड फाइनली यू फील लाइक कि नहीं नहीं, अब आपको इससे निकलना है, आपको एक डिसीजन लेना है, ठीक है। ओके आपके करियर और जॉब में आगे क्या आ रहा है मेष राशि जून मंथ में? जजमेंट, द चैरियट एंड स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी लियो एंड कैंसर से डील कर रहे हो। करियर या जॉब में ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह का एक डिसीजन ले रहे हो सकता है आप किसी जॉब को या किसी करियर से बाहर निकलना चाह रहे हो, या कोई जॉब हो सकती है जिसको कम्प्लीटली छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कम्प्लीटली इस प्रोसेस में नहीं हो उतर पा रहे हो, लाइक आप श्योर नहीं हो कि आप छोड़ दो या आप इसको कंटिन्यू करो, अभी क्या करो, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ रही हैं, और हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए अभी आप उसी कंपनी उसी जगह पे हो जहाँ पे आप रह रहे थे इतने लंबे समय से, और चीज़ों को मेंटेन भी कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है इसी तरह से चीज़ों को मेंटेन करने में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप थोड़ा सा बर्डनिंग फील कर रहे हो, हैवी फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ में, ठीक है, आपको एक हैवी हैवी प्रेशर फील होता हुआ दिख रहा है। लियो एंड कैंसर से आप प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। कुछ लव मैसेजेस हम देखेंगे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो लव लाइफ में, उनकी तरफ से, ठीक है। सो एरीज के पर्सन के ट्रू लव मैसेजेस क्या हैं, डीप फीलिंग्स क्या हैं एरीज के लिए, स्पेशली जून मंथ के लिए? पॉसिबिलिटीज, लॉन्गिंग, रेजिस्टिंग, कन्फेशन, फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी। ओके, सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे होप्स एंड विशेस एंड डिज़ायर दिख रहे हैं जिसको ये फुलफिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। प्लस ये रिस्क जैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में। हो सकता है इस पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट ना हो रहा हो, ठीक है, इस पर्सन को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं है इस कनेक्शन पे, हो सकता है कम्प्लीटली ट्रस्ट आप पर भी ना हो, बट फिर भी ये ट्रस्ट कर रहे हैं, ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचना, आपकी डिज़ायर करना, आपके साथ टाइम बिताने के बारे में सोचना, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ये आपको ही चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। प्लस ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कह भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शेयर कर रहे हैं, हो सकता है अपने दिल की बात ये आपको बता रहे हैं, जो कि मे बी इन्होंने अभी तक ना कह पाई हो, बट ये फाइनली आपसे कह पा रहे हैं। रेजिस्टेंस, सीक्रेट, एडमायर, सप्रेसिंग, हो सकता है ये सीक्रेटली आपको बहुत पसंद करते हो, बहुत लाइक करते हो, लेकिन ये आपसे कहते ना हो, उतना एक्सप्रेसिव ना हो, ठीक है, बट ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है एरीज आपके पर्सन की आपको लेके, ठीक है। सो फाइनल हम गाइडेंस देखेंगे मेष राशि आपके लिए। फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं ये एक्चुअली में आपके साथ एरीज, ठीक है, ये आगे बढ़ के आपके साथ मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो एरीज आपकी आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जून मंथ के लिए? नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बॉटम ऑफ द डेक में है। सो ऐसा लग रहा है कि आप पहली बात तो किसी तरह की पेयरिंग में दिख रहे हो, किसी तरह की पार्टनरशिप में दिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जहाँ पे
आप किसी अपने ही तरह के सेम पर्सन से डील कर रहे हो, सेम पर्सन सेम एनर्जी, बहुत सिमिलर पर्सन दिख रहे हैं और आप दोनों के बीच और ओवरऑल इस सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लव दिख रहा है, एक कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, सिक्योरिटी दिख रही है, लव एंड इमोशंस फीलिंग्स सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको अपने ऊपर फोकस करने को कह रहा है राइट नाउ, अपने करियर पर, अपनी जॉब, अपनी इंडिपेंडेंस, इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखने को कह रहा है। ठीक है, सो वाओ, दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक